اتحادیوں کے تحفظات، پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مؤخر۔ بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر غور نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اتحادیوں سے مزید مشاورت کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرے گی۔ 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری۔ 126 ممالک کے کاروباری اور سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا فری انٹری ہوگی۔ بنو کینٹ پر حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت و اسرائیل کی مذمت میں قرارداد منظور۔ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے فلسطین کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کرنے پر زور دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس مٹیریل موجود ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بیان۔ جس ڈولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پوری قوم جانتی ہے۔ آج وہی نئے ہتھکنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف، ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف، کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ مخصوص ٹولے نے 9 مئی کو ملک میں غدر مچایا، پاکستان کی جڑیں ہلانے کی کوشش کی۔ دھرنا دینے اور اداروں پر حملہ کرنے والے اب نئی وارداتیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئیں۔ معصوم شہریوں اور پاک فوج کے خلاف کوئی اقدام کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ سیکیورٹی اداروں پر حملے پاکستان کے خلاف منظم سازش ہے۔ دہشت گردی میں ہمسایہ ممالک کا کردار ہے۔ مہمان نوازی کا بدلہ دہشت گردی سے دیا جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کی قسمت کو بدلنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب۔ کہا، جرمنی اور لندن میں پاکستانی سفارتخانوں پر حملے افسوسناک ہیں۔ ہمارے سفارتکاروں کی حفاظت ان ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ویزا رجیم میں بڑی تبدیلی لائی ہے۔ 126 ممالک سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں الیکٹرانک ویزا مل جائے گا۔ وزیر اعظم کی غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ کہا کہ اسرائیل کی حالیہ بےمعنی کارروائیوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ غزہ و فلسطین کے دیگر علاقوں میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت ہر شہری اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن رہا ہے۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جمعے کو ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور دیگر گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ میںہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف، جبکہ تیسرا ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ آئین کی بالادستی کے لیے اب اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر اور دیگر کی بھوک ہڑتال، کیمپ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ محمود چکزئی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا۔ پاکستان تاریخ کے بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر آئی۔ ہمارا اتحاد اس لیے نہیں بنا کہ کسی سے حکومت چھینی جائے، ہمارا اتحاد آئین کی بالادستی کے لیے بنا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جس کے ساتھ 96% عوام، اس پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ان بزدلوں سے ڈرنے والے نہیں، کیا رول آف لا کی بات کرنا غداری ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک کھڑے ہیں۔ توقع کرتے ہیں کہ جمعے کے روز ساری قوم نکلے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے حملوں کے اعتراف کے بعد اب تمام ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا کیوں نہیں مل سکی؟ انہیں معافی دینی ہے تو پھر جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھی معاف کرنا بنتا ہے۔ اگر کوئی جماعت آئین کے آرٹیکل 17 پر پورا نہیں اترتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے بیٹی کے ہمراہ ناحق 200 پیشیاں بھگتیں لیکن کوئی حملہ نہیں کیا۔
भारी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करा दिए। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी बेटी ने जीएचक्यू पर हमला नहीं कराया। अज़्म इस्तेकाम कौमी सलामती का बयानिया है, फौज अपने मफाद के लिए नहीं, कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खून से नहा रही है। सियासत को अज़्म इस्तेकाम के तसव्वुर में शामिल करना कहाँ की सियासत है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम मौलाना के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएहमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सत्ताइश नहीं मिलती। बनू वाक़े पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़े पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस के दौरा। अज़ला अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में अज़ला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों को फराहम की जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात, दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर अद्वियात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ताहिर अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ताहिर अंजुम इस वक्त भी तरने की फुटेज बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा है कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है। पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। मुजरिम बार बार इतराफ़ जुर्म कर रहा है। इतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहनसाजी करके उन्हें ज़ोंबीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा ओढ़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना धोना, रोने वालों ने बिजली महंगी की है। ये शख्स मुल्क को डिफ़ाल्ट करके चला गया। IMF को ख़त लिखा कि मदद न करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब।
पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में इंसादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की। फहरिस्त में मौजूद मुलजमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में सदा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुलजमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमोगेट का मामला ऐसा नहीं था जैसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को ख़त न लिखने पर वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शला का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं, वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं, ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बाहर बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 20 से 30% कंपनियां दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनियों के साथ किए मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए, MQM का करारदाद में मुतालबा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों से स्लैब सिस्टम, टैक्सेस और फिक्स्ड चार्जेस ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि अवाम का खून निचोड़ कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहिदों में नून लीग पीपल्स पार्टी PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हम ये फैसला भी कर सकते हैं कि बिजली के बिल का बायकॉट करें। सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करना जानते हैं। हम इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे। अगर इब्तदाई मुतालबात मान लिए तो बातचीत होगी, वरना वहीं बैठकर पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। पहले मरहले पर 1 रोज़ की हड़ताल करेंगे। IPPs के मामले पर FPCCI ने फैसला कुन जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कायम मुकाम सदर FPCCI अब्दुल मोमिन खान ने कहा है कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस का मामला ताजरों और आवाम के लिए संगीन हो चुका है। कैपेसिटी चार्जेस पर रवां हफ्ते हंगामी FPCCI के मजलिस आमा का इजलास बुला लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने के हवाले से फैसला किया जाएगा। FPCCI तमाम ताजर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी के बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। बिजनेस कॉन्फ्रेंस फेडरेशन के अलावा दीगर कारोबारी तंजीमों को भी शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। असम्बली में ऐसा वाक़या बाइस तशवीश और हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। तमाम मसाइल को बातचीत से हल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। पुरतशद्दुद एहतजाज किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। महरम बलोच बेटी मसालत का रास्ता अपनाएं। हम चाहते हैं कि सूबे के हालात पुरअमन रहें। बलोचिस्तान असम्बली की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज और पाकिस्तान का झंडा हमारी रेड लाइन है। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए हमारा दुश्मन चैलेंज खलीज पैदा कर रहा है। फेक न्यूज़ का सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। ग्वादर में रैली निकालने से CPAC के वफूद मुतासिर हो गए। इस एहतजाज से न सिर्फ ग्वादर मुतासिर होगा, बल्कि पूरा सूबा मुतासिर होगा। ग्वादर के अलावा किसी भी ज़िला में एहतजाज कर सकते हैं। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की प्रेस में यूनेस्को के ज़ेर तमाम वज़ारती फोरम में शिरकत। राना सनाउल्लाह ने यूनेस्को के हेडक्वार्टर का दौरा किया।
जबकि चेंज द गेम वजारती फॉर्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। राना सोनावला ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के सिलसिले में आला सतह फॉर्म के इनेकाद के लिए यूनेस्को की तारीफ की। कहा कि ओलंपिक्स जैसे मेगा स्पोर्ट इवेंट्स पूरी दुनिया को सेहतमंद मुकाबले में इकट्ठा करने में एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के नौजवान तरीन ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में 12 मुख्तलिफ गेम्स के लिए यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। गवर्नर सिंध को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के अगराज और मकासद से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज से नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। राना मशहूद ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं। राना मशहूद की जामिया NED आमद बायो मैकेनिक्स लैब का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का नौजवान खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें एहसास है अवाम बिजली के बिलों से तंग है। सियासत की आड़ में दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि जमातों के अस्करी विंग्स पर पाबंदी होनी चाहिए। मानसून के रंग। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्टा बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद KP कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके मरी गलियात कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोपेमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। डच, सिंगापुर, इक्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमाओं को रेस्क्यू किया। कोपेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बायस रेस्क्यू किया गया। कोपेमाओं ने बर वक्त रेस्क्यू करने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मौसम की खराबी के बायस K2 सर करने के दौरान हमारी तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज के एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई से तिब्बी इमदाद फराहम की गई, रेस्क्यू किया गया। रवां साल जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोपेमा का भी जान बचाई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुराज़्म कहते हैं कि कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में ज़्यादा आसान हरीफ हैं, उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कमला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक मुबाहिसा ज़रूर करना चाहूँगा। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। सदारती इंतखाबात के मार्के में सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी मिल गई। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, कमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई।